Students, welcome back. In this series of video discussions, we will be discussing the some of the poetry by Yeats, the Irish poet, and in this particular video, we will be taking up the poem When You Are Old, which is by W.B. Yeats. And in this particular video, we will be just taking a brief introduction. So this is part 1, so let's get started. Okay, so as in the introduction, what all will we be doing? The first point here is overview. So we would have a look at the overview. Then we would take a look at the verse, the main theme, the tone and the voice, the context, form and structure, the poetic devices, and summarize with what we have done in this video. And here I have taken up this poem, a small poem, a short sonnet with 12 lines. So let's move forward. This is a picture of Maud Gonne. Who she is, we will be finding out in our video further. So, what is this poem about? This poem is about a woman who's looking back on her life when she is old. ऐसी कविता है जिसमें ये महिला जो है वो अपने जीवन पे देख रही है, मुड़ के देख रही है अपने जीवन को, क्योंकि अब वो बहुत ओल्ड हो गई है, काफी उम्र की हो गई है, तो पीछे मुड़ के अपने जीवन को देख रही है. The speaker asks her to remember how many people loved her beauty, but only one person truly loved her soul. It's a gentle, but it's a sad message about missed chances and regret. मतलब कि उसको ये जो महिला है जो सोच रही है, ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि शरीर जरूरी है कि आत्मा जरूरी है. और जो मैसेज उसे मिलता है उसमें ये नजर आता है कि वो थोड़ी सी दुखी है कि उसने कुछ मौके खो दिए, और उसे रिग्रेट है, पछतावा भी है कि वो मौके उसने कैसे खो दिए. Yeats wrote this poem in 1893. He was in love with Maud Gonne, and this woman did not return his feelings. He proposed to her many times, but she always said no. Okay, so ये जो है नाम है ये एक महिला का, मॉड गॉन. जो कवि हैं येट्स, उन्हें ये बहुत पसंद थी, ये इनके पीछे एकदम पागल थे. लेकिन मॉड गॉन जो थी, उन्होंने इनके प्यार को कभी भी वापस नहीं दिया. इन द सेंस डिड नॉट रेसिप्रोकेट, मतलब कि अगर ये उनसे प्यार करते हैं तो मॉड गॉन भी येट से उस तरह से प्यार नहीं करती थी. और मॉड गॉन ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल. किसका? कवि का, येट्स का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया. किसने? मॉड गॉन. इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच पोएम अबाउट लव एंड रिग्रेट. ये जो पोएम है ये प्रभावित है एक दूसरी पोएम से, फ्रेंच लैंग्वेज की पोएम है, और उसमें भी कुछ मिलता जुलता मैसेज था. किसके बारे में? लव एंड रिग्रेट. लव मीन्स प्यार, रिग्रेट मीन्स पछतावा. अब हम देख लेते हैं इनके जो टेक्स्ट है कि पोएम क्या है. लेट्स लुक एट इट. When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once,
and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true? But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. So that was the poetry recitation. Now we look at the main themes. इसकी main themes देख लेते हैं. The first one is unreturned love. So the poem, it explores unreturned love. It explores regret, aging, memory, the difference between true love and shallow admiration. It shows how beauty fades but emotional truth lasts. It highlights the speaker's belief that only he loved her inner self. So basically it's about fleeting nature of love. तो ये पोइट्री किसके, इसकी मेन थीम्स क्या है? अनरिटर्न लव, एक ऐसा प्यार जो वापस आपको रिटर्न में नहीं मिला. रिग्रेट, पछतावा. एजिंग, हमारा बुढ़ापा आता है इंसान का, वो. मेमोरी, यादें. ट्रू लव वर्सेस शैलो एडमिरेशन, सच्चा प्यार और हम सिर्फ किसी को एडमायर करते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसका फर्क. सच्चे प्यार के बीच में और किसी को पसंद करना, इन दो चीजों के बीच का फर्क. फ्लीटिंग नेचर ऑफ लव, इसका मतलब ये है कि प्यार कहीं कभी टिकता नहीं है, उड़ जाता है. इसको कहते हैं फ्लीटिंग नेचर ऑफ लव. टोन एंड वॉइस, मतलब कि इसमें किस टाइप की आवाज है, आवाज कैसी है, टोन. तो हम कह सकते हैं इट इज सॉफ्ट एंड रोमांटिक. शुरुआत तो ऐसे ही होती है, द टोन स्टार्ट सॉफ्ट एंड रोमांटिक, देन इट बिकम्स रिग्रेटफुल एंड इमोशनल. पहले शुरुआत होती है सॉफ्ट एंड रोमांटिक, फिर रिग्रेटफुल और इमोशनल हो जाता है. द स्पीकर एड्रेसेस द वुमन डायरेक्टली, डायरेक्ट एड्रेस है, मतलब कि उससे डायरेक्टली बात कर रहा है. डायरेक्ट एड्रेस मतलब डायरेक्ट बात कर रहा है. रिग्रेटफुल इमोशनल मीन्स पछतावा, इमोशनल मीन्स बहुत भावुक. एंड इंटीमेट वॉइस मतलब बड़ी ही जो करीबी होता है वही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है. He does not use I pronoun. I pronoun का इस्तेमाल यहाँ हुआ नहीं है. It is a personal address. मतलब कि एक बहुत ही प्राइवेट तरीके से उससे बात कर रहा है और वन साइडेड है, मतलब एक तरफा बातें हो रही हैं. कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. तो विलियम बटलर यीट्स जो थे, he came from a Protestant Anglo-Irish family and he had a long-standing interest in Irish mythology. He believed he should transcend political and religious divisions in Ireland. He played a very important role in Irish literary revival. I have talked about it in my previous videos. He played a prominent role, as I said, in Irish literary revival. And in the year 1923, he was awarded the Nobel Prize in Literature. Okay, so that is about William Yeats. Background थोड़ा सा जो कवि है उनके बारे में है कि उनका वो थे प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट है प्रोटेस्टेंट. एंग्लो आयरिश, इंग्लिश और आयरिश उनकी हेरिटेज था, बैकग्राउंड था. आयरिश माइथोलॉजी जो था उसमें उनका काफी इंटरेस्ट था. उन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में काफी योगदान दिया
और 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला। अब देख लेते हैं मॉड गॉन को। मॉड गॉन जो थी उनसे येट्स 1889 में मिले थे। कौन थी मॉड गॉन? शी वॉज एन एक्ट्रेस एंड एक्टिविस्ट। शी वॉज पैशनेट अबाउट आयरिश नेशनलिज्म। Yeats was infatuated with her, but while she admired him, she admired him. She did not return his love. इसका मतलब ये है कि वो उनको पसंद जरूर करती थी लेकिन प्यार नहीं करती थी। दोनों में काफी अंतर है। कुछ चीजें उनकी पोइट्री या उनकी पर्सनालिटी या कोई पार्ट था जो उन्हें वो तारीफ करती थी, उस चीज को इम्प्रेस थी, मगर प्यार नहीं करती थी। इतना नहीं करती थी कि शादी कर ले उनसे। He proposed to her 4 times but was consistently turned down, and many of his poems were inspired by her. And it is strongly implied that she is the figure he addresses in this poetry. तो मॉडगॉन जो है 4 बार येट्स ने उन्हें प्रपोज किया और चारों बार मॉडगॉन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और जिस तरह से पोइट्री की लाइंस बताती हैं एक कहानी, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस पोइट्री का जो सब्जेक्ट है येट्स किसको कह रहे हैं। ये मॉड गॉन ही है जिन्होंने येट्स को इंस्पायर किया ऐसी कविता लिखने के लिए। ये है मॉड गॉन की पिक्चर उनके यंग डेज की। शी टर्न डाउन जीस प्रपोजल 4 times, है ना। और ये पिक्चर जो है ये वाली, एक मिनट, हाँ, ये जो पिक्चर है ये एक आयरलैंड में एक जगह है, स्लिगो काउंटी एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का है, काउंटी स्लिगो नाम है उसका, आयरलैंड में। वहां पे एक दीवार के ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है और ये पोइट्री लिखी हुई है। ये पिक्चर को अगर आप देखोगे, ये फेस को देखोगे और आप इधर इनको देखोगे तो दोनों सिमिलर है। तो जाहिर सी बात है कि ये पोइट्री मॉड गॉन की ही याद में या उन्हीं को बोलकर लिखी गई है। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट एक और, कि भाई फ्रेंच जो पोएम है उससे कैसे ये सिमिलर है। तो 1587 में द फ्रेंच पोएट पियर डे रॉन्जर्ट, ये नाम है पोएट का, फ्रेंच पोएट थे पियर डे रॉन्जर्ट, ही रोट अ पोएम, उन्होंने ये पोएम लिखी, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, Point vous serais bien well. I'm sorry if the pronunciation is not accurate and good French. पर इसका ट्रांसलेशन हम यही कह सकते हैं when you are old. और ये एक सोनेट था जो एड्रेस था अ यंग वुमन हु वाज डिसइंटरेस्टेड। तो ये जो फ्रेंच पोएट है इन्होंने भी एक कविता लिखी एक यंग महिला के लिए, एक जवान महिला के लिए, जिसमें वो उनसे बात कर रहे हैं लेकिन ये जो महिला है उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। किसमें? ये पोएट पियर जो है पोएट, इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन्होंने एक कविता लिखी इसी तरह की। इस कविता में भी ये जो महिला है यंग वुमन, उन्होंने ही इनको इंस्पायर किया है ये कविता लिखने के लिए। इनके ये जो कविता थी ये काफी जो पोएट्स थे उनको इंस्पायर किया। जब ये लिखी गई थी उस वक्त काफी पोएट्स इंस्पायर हुए थे और उनमें से येट्स भी एक थे। He uses it as a sort of literary prototype here. सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? जो फ्रेंच पोएम है और जो येट्स की पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, सेंट्रल आइडिया एंड इट्स ट्रीटमेंट। जो सेंट्रल आइडिया तो यही है कि भाई प्यार जो है वो रिजेक्ट हो गया है और उसके बाद जिसका रिजेक्ट हुआ है वो कविता लिखते हैं ये कहते हुए कि तब जब तुम ओल्ड हो जाओगी तब क्या होगा। और वो उसमें ये कह रहे हैं
दोनों पोएम्स में यही है कि दे इनवाइट अ वुमन टू इमेजिन हर फ्यूचर ओल्ड एज एज लोनली एंड सैड बिकॉज शी रिफ्यूज द लव ऑफ द पोएट. She would never find a better love than his. So both poems also suggest the poet's work will be famous and outlive the woman. तो कहने की बात दोनों पोएम में यही कहा जा रहा है एक जवान महिला को कि तुमने मेरा प्यार रिजेक्ट किया, अब तुम फ्यूचर में देखना जब तुम ओल्ड हो जाओगी तुम्हें पछतावा होएगा और तुम मुझे याद करोगी. तुम नहीं रहोगी लेकिन मेरी जो पोइट्री है ये हमेशा रहेगी और इस पोइट्री के कारण, इस कविता के कारण जो मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी, फेम मिलेगी, वो भी हमेशा रहेगी. ठीक है, तो ये दोनों पोइट्री में सिमिलैरिटीज हैं. ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है. ओहो, पिक्चर चली गई, लेकिन इट वी विल कंटिन्यू. उसमें जो वो है जो पोएट है फ्रेंच पोएट, उनकी फोटो थी और यीट्स की थी. तो दिस विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड इसको हम पार्ट 2 तक भी लेके जाएंगे, आगे भी जारी रहेगा. इन पार्ट 2 वी विल बी लुकिंग एट दीज पॉइंट्स. सो this would be quite a detailed description and I hope you will get some learning out of it. And I hope you got some learning out of this video also. So, happy learning till we meet again.